में एक किताब की समरी पढ़ेंगे। उस किताब का नाम है प्योरीफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर। फरहान नाज ने ये बुक किताब लिखी है और वो फॉरेन जो पॉलिसी मैगज़ीन है उनमें 2012 की जो लिस्ट थी 100 ग्लोबल थिंकर्स की, उनमें उनका नाम आया था और वो बहुत ही अच्छी राइटर हैं। तो एक वीडियो क्लिप देखने के बाद हम आगे समरी पढ़ेंगे, तो आप वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. अब हम लोग आगे देखते हैं। क्लिप देखने के बाद आपने वो क्लिप देख लिया होगा। द की कंसेप्ट ऑफ द बुक, यूज़ ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, वार, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड टू बिल्ड नेशनलिज्म। सबसे पहला की कंसेप्ट ये है। फिर पाकिस्तान इज़ अ हेल्प फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ओके, इट इज़ अंडरस्टूड। सिविल नेशनलिज्म इज़ बेटर दैन रिलीजियस नेशनलिज्म। दीज आर 3 लेसन्स दैट द राइटर ट्राई टू कन्वे टू अस। ओके, so here we go. Use of religion in politics, war, strategic advantage and to build nationalism. The writer says that our nationalism is based on religion, especially in Pakistan the nationalism is based on religion. We are Muslims and Pakistan is a land of pure. She said that we Muslims believe that Pakistan is a land of pure and every other religious minority is impure, so try to cut them, try to kill them, we try to marginalize them. This is the key idea. Jinnah wanted to build a state, then writer says that Jinnah wanted to build a state where everyone would have equal rights, जहाँ पे सबके पास इक्वल राइट होते हैं. बट आफ्टर द डिमाइज ऑफ जिन्ना, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, पॉलिटिशियंस यूज्ड इस्लाम, दे यूज्ड इन इलेक्शंस, दे यूज्ड फॉर पॉलिटिकल लिवरेज. ओके, दे यूज्ड द इस्लाम फॉर पॉलिटिकल लिवरेज. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट माइनॉरिटीज सफर्ड. And objective resolution of 1949 came and we tried to build a nationalism on our religion rather than on our civic rights. Our nationalism is basically a religious nationalism rather than civic nationalism, which is better. ठीक है. Then second lesson is Pakistan is a hell for religious minorities. Writer explains that after the demise of Muhammad Ali Jinnah, who wanted that everyone, regardless of a religion, regardless of his political beliefs, regardless of his any sort of beliefs, must be protected by the state. But after the demise of Jinnah, religious extremists in the Pakistan prevailed and first attack on minority happened in 1953. पहला अटैक जो माइनॉरिटी पे हुआ था वो 1953 में हुआ था. 2000 पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप डाइड, और उससे क्या हो गया था, 2000 लोग मर गए थे. देन वी सा काउंटलेस नंबर ऑफ द अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज़. फिर हमने माइनॉरिटीज़ के साथ कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया. इन सिंध माइनॉरिटी ग्रुप्स आर फोर्सफुली कन्वर्टेड टू इस्लाम. सुसाइड अटैक्स ऑन चर्चेज. शिया इन हज़ारा आर स्लॉटेड बाई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. ज़िया, स्पेशली ज़िया fueled the sectarianism in Pakistan because we were involved in jihad in Afghanistan at that during the Zia era. And what we did, we promoted Wahhabism and extreme form of Islam and extremism, like we did that. And what was the result of that extremism? Shia and Sunni group killed each other. So this was a problem. It is even today problem. Hazara minority Shias are being killed in Balochistan. This is not the Pakistan Jinnah wanted. This is especially not the Pakistan Jinnah wanted. Civic nationalism is better than religious nationalism. Then writers tries to tell us that in civic nationalism, state ensures provision of rights to citizens and citizens perform their responsibility in return.
but Pakistani nationalism is based on religion. Okay, the writer says that such nationalism are good rather than the nationalism based on religion. However, we never try to build a civic nationalism. Now my take on it is, but now लेकिन अब पाकिस्तान इज़ बिकमिंग बेटर एंड बेटर डे बाई डे फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज़. अब पाकिस्तान रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता जा रहा है. हावेवर आवर नेबर इंडिया, लेकिन हमारा जो पड़ोसी है जो कि सेकुलर था, विच वॉज सेकुलर, हैज़ लॉस्ट हिज वे एंड डूइंग इनजस्टिस विद रिलीजियस माइनॉरिटीज़. और अब इंडिया में क्या है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है. इंडिया मस्ट टेक लेसन फ्रॉम पाकिस्तान. इंडिया को पाकिस्तान से लेसन लेना चाहिए, हमारी हिस्ट्री को देखना चाहिए. इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम्स. इंडिया को मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो रिलीजियस माइनॉरिटी है ना वहाँ पे. एंड एज अ पाकिस्तानी आई बैक पार्डन फ्रॉम दोज सफर्ड इन माई कंट्री पाकिस्तान ड्यू टू देयर रिलीजियस बिलीव्स. उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को.